I don't think you are ever ready to read Harry Potter books. Well, I have been reading Harry Potter and I did a book talk about Harry Potter and the Philosopher's Stone a few days ago. Today I'm talking about Harry Potter and the Chamber of Secrets. And nobody is gonna tell you that Harry Potter is a great franchise, you should read the books, and nobody will ever make you ready for what is in the books. Okay, आपने चाहे कितनी बार भी मूवीज़ देख ली हो, अगर आपने एक बार बुक पढ़ना शुरू कर दिया, there is no way you can keep them down. The books are the real thing, okay? And I really now understand why जो बुक फैंस हैं हैरी पॉटर के वो इतने बड़े पॉटर हेड्स क्यों हैं. I totally get it now. I thought I am a Harry Potter fan just by watching the movies, okay, honestly speaking. And मुझे लगता था मुझे सब कुछ पता है हैरी पॉटर के बारे में. I am like one of those हैरी पॉटर फैंस जो सिर्फ मूवीज़ देख के अपने आप को नर्ड बताते थे. And I am guilty of that. But after reading and while I'm reading the Harry Potter books, I think I was very, 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 very wrong. बिकॉज मूवीज़ जो है ना वो इतनी फास्ट हैं दैट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द स्टोरी. They are not focusing on the characters, okay? They're only focusing that there is Harry Potter and there's Voldemort. Oh, sorry, I said the name aloud. But it is not uh, being tracked yet because I'm still at Prisoner of Azkaban. Only Harry Potter book fans must have gotten this one. Anyway, so I can't say Voldemort. So the movies only talk about uh, Harry Potter and Voldemort's connection and how Harry Potter is going to defeat Voldemort after all. But the books actually talk about each and every storyline that is going inside the whole story. Okay, it talks about the characters, it talks about Harry. मतलब मुझे लगता है कि मूवीज़ डिड नॉट डू जस्टिस टू who Harry Potter was. Movies did not do justice to any characters as such. They just told us a story in a very creative, very cinematic, and very, you can say, attractive way, right? And no doubt, films were a hit. I loved them for a very long time, but now that I'm reading the books and I'm recalling a lot of my friends who have already read the books telling me, यार बुक्स पढ़ ले, बुक्स पढ़, बुक्स में ज़्यादा मज़ा आता है. I get it now, totally get it. And I'm sorry कि मैंने अब तक उनकी बातें नहीं सुनी थी. But होता है ना कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इंसान और बुक्स, पर्टिकुलर इंसान और पर्टिकुलर बुक्स आपकी लाइफ में तभी आती हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. Wisdom 101. And I felt like this was the perfect time for me to read Harry Potter books. And I remember I was so engrossed in Prison of Azkaban last night, and I was thinking to myself that I really feel like I'm in school right now. Because मूवीज़ में तो स्कूल लाइफ दिखाई ही नहीं है ना. लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है. उसमें फ्रेंडशिप बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है. उसमें हर एक कैरेक्टर के पर्सनालिटीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है. एंड मुझे लगता है कि बुक्स में इतना खो गई थी मैं पढ़ते पढ़ते, अभी भी खोई हुई हूँ आधी से ज़्यादा, कि आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. I was lost in the universe, Harry Potter universe. And I really feel कि किसी भी एक बुक रीडर के लाइफ में ये बहुत ही मैजिकल फेस होता है जब आप किसी एक, यू कैन से, फ्रेंचाइज पे हुक हो जाते हो एंड यू कांट जस्ट गेट ओवर इट एंड यू हैव टू जस्ट रीड इट ऑल. ओके, यू वांट टू गेट इट ओवर विद बिकॉज आपको जानना है कि पूरी फ्रेंचाइज कैसे एंड होती है, जबकि आपको पता है कि कैसे एंड होती है. बट बुक्स में बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है सब कुछ. एंड आई जस्ट फील लाइक कि मैं हैरी पॉटर को पहली बार जान रही हूँ. हाउ एवर मुझे लगता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स
की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं सिर्फ उसी की बात करूँगी। मुझे मूवी वाइज उतनी पसंद नहीं आई थी, ओके, बट बुक वाइज इट वन ऑफ माई फेवरेट्स नाउ, ओके। इतनी खूबसूरती से लिखी गई है और इतने प्यारे कैरेक्टर्स हैं। चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स मैं सच में रेकमेंड करूँगी, आप ज़रूर पढ़िए। वाई इज इट नॉट फोकसिंग? फोकस कर लो मैंने, क्या हो गया? यस यस यस। सो चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर पढ़िए। आफ्टर फिलोसफर्स स्टोन ऑफ कोर्स, बिकॉज it is such a funny, most amazingly written children's book, I would say. It really is a children's book because Prisoner of Azkaban के टाइम पे, लाइक फ्रॉम दैट बुक और फ्रॉम दैट मूवी थोड़ा वाइब चेंज होता है, टीनेज वाइब आ जाता है। बट फर्स्ट 2 बुक्स जो हैं हैरी पॉटर की, वो बहुत ही चिल्ड्रन बुक्स हैं, बहुत ही बचपन दिखाया है उसमें, स्कूल लाइफ, फ्रेंड्स एंड टू मैनी इनसिक्योरिटीज़ दैट चिल्ड्रन हैव इन देयर लाइफ, द प्रॉब्लम्स दे हैव, एंड वो जो इन्जॉयमेंट है पढ़ने में एज एन अडल्ट ऑल्सो, आई एम फीलिंग इट थॉरली, ओके। माई फेवरेट कैरेक्टर्स हैरी पॉटर सीरीज़ में आर फ्रेड वीजली एंड जॉर्ज वीजली, एंड मूवी में उनका कोई ख़ास रोल नहीं था, देवर फिलर, कॉमेडी करते थे आके, थोड़े बहुत जोक्स करते थे, एंड देवर लाइक थोड़ा सा ह्यूमर रिलीफ कर दिया क्योंकि बहुत ही टेंशन चल रही है अराउंड। लेकिन फ्रेड एंड जॉर्ज का थ्रू आउट जो फ्रेंचाइज में अमेजिंग रोल है ना, मतलब दे आर नॉट जस्ट फनी, दे आर द पीपल हु यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद। आपको लगता है कि अगर फ्रेड एंड जॉर्ज रियल कैरेक्टर्स होते तो मैं पक्का उनकी दोस्त बनना चाहती और मज़ा ही आ जाता लाइफ में अगर वो मेरे दोस्त होते। तो दे आर लाइक माई फेवरेट कैरेक्टर्स एंड जस्ट टू हिलेरियस एवरी टाइम दे कम इन द सीन, ओके। एंड हमें जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है हैरी पॉटर मूवीज़ के बारे में, वो ये है कि जो हैरी और जिनी वीजली की रिलेशनशिप है उसको बस ऐਵੇਂ ही दिखा दिया गया है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, बस थोड़े थोड़े बिट्स में बताया है कि हाँ दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड एंड ऑल, बट हाउ इट बिगिंस एंड हाउ जिनी वीजली हैज़ अ क्रश ऑन हैरी, हाउ ऑल द वीजली सिबलिंग्स इंक्लूडिंग रॉन टीज Harry Potter that Ginny has a crush on him, and it's just so funny. It's amazing. The comedic relief they have in the movie is not the relief in the books. It is definitely something you want to read. You enjoy reading. You enjoy being part of that whole scene. And books इतने प्यारा तरीके से लिखी गई हैं, especially Chamber of Secrets, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे स्कूल लाइफ को इतना अच्छे तरीके से मतलब ग्लोरीफाई भी किया गया है, बट रिलेटेबल भी किया गया है कि मतलब पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है आप वहीं पे हो और आप सब कुछ देख पा रहे हो और सब कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, आप उन सबके गैंग में हो, यू आर इन द ग्रुप ऑफ दोज वीजलीज एंड हरमाइनी और हैरी, सब लोग दोस्त हैं ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में बैठ के, आप भी वो सब विटनेस कर रहे हो, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल that this is like a magical phase in my life. I am in my Hogwarts era and I just loving it, every second of it, okay. So I just finished Prisoner of Azkaban a few minutes ago. I will talk about it in another video, but right now I'm talking about Chamber of Secrets. एंड मुझे ऐसा लगता है, और जो मुझे चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स में बहुत अच्छी चीज़ लगी है जो कि हमारी जो मूवीज़ हैं उनमें अच्छे से नहीं पोर्ट्रे किया है, वो है रॉन की पर्सनालिटी। रॉन का जो कैरेक्टर है, रोनाल्ड वीजली, वो बहुत ही साइड किक टाइप का कैरेक्टर बताया गया है मूवीज़ को देखा जाए, और ऐसे बताया बड़ा बेचारा सा डम टाइप का इंसान है जिसको कुछ भी नहीं आता है और बस हमेशा परेशान रहता है और बहुत ही रोता रहता है टाइप का, ऐसा दिखाया है मूवीज़ में। बट इफ़ यू रीड द बुक्स, रोनाल्ड वीजली का कैरेक्टर एक्चुअली फील्स लाइक कि वो हैरी पॉटर का बेस्ट फ्रेंड है, वो साइड किक नहीं है। वो कैसे दोस्त बना और उसका दोस्त है, और वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें वो अच्छा है और बाकी लोग नहीं हैं, और वो किस तरीके से हर चीज़ में हैरी का साथ देता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और वो बुक्स में इतने अच्छे से ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रॉन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज़, फैक्ट। और दूसरी चीज़ कि जो बाकी वीजली सिबलिंग्स हैं, जैसे कि बिल वीजली है, चार्ली वीजली हैं, जो कि सबसे एल्डेस्ट सिबलिंग्स हैं वीजलीज़ के,
वो भी इसमें अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। मतलब बीच बीच में ही उनका जिक्र आता है, लेकिन बताते हैं, बीच बीच में आता रहता है उनका जिक्र। ऑब्वियसली मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कैरेक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में जो उनका रोल है इट्स रियली गुड। एंड आई फील पूरी वीजली फैमिली को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, स्पेशली इन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, बिकॉज आई थिंक इट वॉज एन इंट्रोडक्शन फॉर एवरीबडी अबाउट द वीजली फैमिली, एंड क्योंकि वो हैरी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस वॉज अ परफेक्ट वे टू डिस्क्राइब दैम। और हर बुक के एंड में ना एक फैक्ट पेज भी है बहुत खूबसूरत, जिसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में वीजली फैमिली के सारी डिटेल्स हैं उसमें, उनकी बर्थडे से लेके उनके ट्रेट्स, उनकी स्पेशलिटी, उनकी स्किल्स, उनके लुक्स, सब कुछ मेंशन किया गया है, एवरी सिबलिंग एंड मॉम एंड डैड इज़ वेल, एंड दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट. So that's it about today's video. I think Chamber of Secrets has been one of my favorite reads, and I think मैंने 3 दिन में ख़त्म कर दी थी, and it is some 400 or so pages. I think not 400, sorry. It is हाँ, इट इज़ एग्जैक्टली 360 पेजेस, और मैंने 3 दिन में ख़त्म कर दी थी। इतनी बढ़िया तरीके से लिखी गई है, तो आई वुड रेकमेंड जिन्होंने भी अभी तक हैरी पॉटर मूवीज़ देखी हैं बट बुक्स को नहीं पढ़ा है, और आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत मज़ा आएगा इफ़ यू रीड हैरी पॉटर. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइज रीड फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट की बुक टॉक में ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई विल शेयर द लिंक समवेयर एंड यू कैन वॉच दैट, एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर watching this one, and subscribe to the channel if you like book talks like these. And currently I am in my Hogwarts era, so I will be talking a lot more about Harry Potter books, but I will also be talking about other books. So subscribe to the channel for more, and hit the bell icon if you don't want to miss an update. Like the video if you like this one, and if you are a Harry Potter fan, so please do let me know if you read the books, or which one of them is your favorite book so far. And that's it. Thanks for watching again. Subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Namaste.